Dear students, I welcome you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, BA first year सब्जेक्ट एजुकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले दफ़ा जब मेरा वीडियो आया था वी डिस्कस मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी में मैंने आपको बताया इट इज़ इंक्वायरी इनटू द रियलिटी। फिलॉसफी में हम रियलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु हैज़ क्रिएटेड मी, वाई आई हैव बीन क्रिएटेड, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, what is the purpose of creation, why I have been created. These are the different questions which strike the mind of a man, and philosophy tries to answer these questions. This is the field of inquiry of philosophy. We try to find out the reality, we try to find out the knowledge, we try to find out the beliefs, we try to find out the values and the discipline which answers or such inquiry is philosophy. So my dear students, today we will be discussing the nature of philosophy, but before going towards the nature, I will be giving you some definitions of philosophy. Famous philosopher Fichte defines philosophy as philosophy is the science of knowledge. Means in philosophy we study about every sort of knowledge. Is science, it is the discipline which studies knowledge and only knowledge. Then Coleridge says philosophy is science of science. ये हर साइंस का साइंस है, ये हर क्वेश्चन का आंसर है. So he calls it philosophy is science of sciences. Famous philosopher Plato says philosophy aims at the knowledge of eternal. यानी philosophy हमें रियलिटी की नॉलेज देता है. Eternal means something real, something ultimate. Philosophy aims at the knowledge of eternal. Philosophy का मकसद है to study eternity, to study reality, to study reason behind creation of man, to study the creator, to study the cause of creation. Philosophy aims at the knowledge of eternal, of essential nature of things, and it tries to study the nature of things. Why the things have been created, what is their purpose, why the universe has been created, why this world has been created, why man has been created, who is the creator. This all is the subject matter of philosophy, my dear students. Now my dear students, let's come to nature of philosophy. Now, what type of discipline it is, what are the basic principles of this subject, or rather this discipline, what are the basic principles on which, what are the basic concepts, what are the basic theories on which the discipline of philosophy is based. My dear students, जो ancient philosophy थी, that was based on wonder. Ancient philosophy was actually based on wonder. When man saw sun was shining, sometimes it was shining, sometimes it was hiding. Man, he goes into wonder. What is happening? Stars appearing, then disappearing. Light, dark, forests, beyond forests, sky. What this all is? What is fun of all this? So man went into the wonder. It was the beginning of philosophy. जब इंसान हैरान हो गया कि ये दुनिया क्या है, कभी सूरज चमकता है तो कभी गायब हो जाता है, कभी आसमान में तारे होते हैं तो कभी नहीं होते हैं, कहीं फॉरेस्ट तो कहीं दरिया, कहीं तारीकी, कहीं रोशनी,
कहीं सूरज, कहीं तारे। तो ये फलसफा, ये माजरा जब एंशंट इंसान, एंशंट ह्यूमन बीइंग ने देखा, he fall into wonder, and this wonder was the beginning of philosophy. तो इसने सोचना शुरू किया, why sometimes there is light and sometimes there is dark, why sometimes there are stars in the sky and sometimes it is blue sky over my head. He started inquiring. First there was wonder, after wonder, inquiry. This is the nature of philosophy. First you have to wonder. आप में एक वो हैरानगी पैदा होनी चाहिए किसी चीज को लेके, ये क्या है, कहाँ से आया, मकसद क्या है, क्यों बना, किसने बनाया। तो उसके बाद आपकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। यू विल स्टार्ट इंक्वायरिंग इनटू द थिंग्स, व्हाई दिस हैज बीन क्रिएटेड। तो जब आप ऐसे सोचने लगोगे, इट वुड बी द बिगिनिंग ऑफ फिलॉसफी। दैट इज द फिलॉसफी, वही फिलॉसफी है। तो उसके बाद जो मॉडर्न फिलॉसफी है, मॉडर्न फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन डाउट। अब जो आज की फिलॉसफी है, अब जब साइंस आया, टेक्नोलॉजी आई, नाउ वी स्टार्टेड डाउटिंग ओवर एवरीथिंग, वी स्टार्टेड डाउटिंग रियलिटी। हम रियलिटी पे शक करने लगे, वी स्टार्टेड डाउटिंग द डाउट, हम शक पे भी शक करने लगे। यानी साइंस ने कोई चीज दे दिया हमको, हम उस पर और ज्यादा शक करने लगे, नहीं इतना ही नहीं है, इसके आगे भी और कुछ है। हमने बनाया ये, हमने सपोज सेलफोन बनाया, तो इसी पे हमने स्टॉप नहीं किया। नो, वी स्टार्ट डाउटिंग दिस सेलफोन। नहीं, इस सेलफोन के आगे भी कुछ है, हम कुछ और भी बना सकते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनी, जो डिफरेंट मशीनरी बनी, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ डाउट। जो कुछ था हमारे पास, हमने उस पर डाउट किया, हमने उस पर शक किया कि नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ है। सो वी कैन से द मॉडर्न फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन डाउट। वी आर स्टडीइंग द नेचर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन वंडर। फिलॉसफी इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जहाँ हम डीप इंक्वायरीज करते हैं टू स्टडी ट्रूथ, टू स्टडी अल्टीमेट, टू स्टडी रियलिटी। तो इसी तरह हम फिलॉसफी में वी क्रिएट डाउट्स, वी स्टार्ट डाउटिंग द रियलिटी, वी स्टार्ट इवन डाउटिंग द डाउट। हम शक पे भी शक करते हैं, और उस शक करने से वी क्रिएट एन इंक्वायरिंग माइंड। हमारा एक ऐसा माइंड डेवलप हो जाता है विच इज इन सर्च ऑफ नॉलेज, which is in search of new things, is doubt. ये डाउट हम कैसे करते हैं? This doubt is based on reasoning. यानी हम हर एक चीज का रीजन देते हैं। जब ये चीज आया तो why can't we modify it? हम इसमें और क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं? We give our reasons. जो डेस्कार्ट, जो मॉडर्न फिलोसफर है, वो कहता है I think, therefore I am. This is the beginning of modern philosophy. Modern philosophy is based on this dictum. इस सेंटेंस पे मॉडर्न फिलॉसफी बेस्ड है। जिस तरह एंशिएंट फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन वंडर, मॉडर्न फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन डेस्कार्ट्स दिस डिक्टम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं रीजन देता हूं हर एक चीज का, तभी मैं हूं। व्हेन आई कैन गिव रीजन ऑफ थिंग्स, मैं इस दुनिया में हूं, क्यों हूं? आई शुड हैव रीजन। सूरज मशरिक से उभरता है, मशरिक मगरिब में डूबता है। वाई दिस फिनोमिना हैपन्स? आई हैव टू थिंक ओवर इट, आई हैव टू गिव रीजन, आई हैव टू बिकम रैशनलिस्ट, आई हैव टू थिंक ऑन रैशनलिज्म। दैट इज द फिलॉसफी। जब मैं हर एक चीज का रीजन दे दूं, जब मैं हर एक चीज पे सोच सकूं, अपना व्यू दे सकूं, तो आई एम ए फिलोसफर,
आई एम स्टडीइंग फिलॉसफी। और फिलॉसफी का एक और मकसद है, एक और नेचर हम कह सकते हैं, और नेचर में हम कह सकते हैं इट गिव्स द होलिस्टिक व्यू ऑफ यूनिवर्स, यानी ये यूनिवर्स का एक होलिस्टिक व्यू हमें देता है। इट स्टडीज द यूनिवर्स एज ए होल। जिस तरह साइंस स्टडीज द यूनिवर्स, साइंस स्टडीज वर्ल्ड इन पीसेस। फिजिक्स अलग से अपना एक कैपेसिटर, जो फिजिक्स में कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे इतनी डीप इंक्वायरी करता है एक साइंटिस्ट। लेकिन जो एक फिलोसफर होता है, ही स्टडीज दिस वर्ल्ड एज ए होल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you will remember that nature of philosophy is wonder, nature of philosophy is inquiry। हमें वंडर, हमें ये हैरान होना है नेचर को देख के, फिर इंक्वायरी करनी है, डाउट करना है नेचर पे, रीजन देना है व्हाई समथिंग इज देयर, एंड वी हैव टू स्टडी दिस यूनिवर्स एज ए होल। हमें एक साइनोप्टिक, एक होलिस्टिक व्यू देना है यूनिवर्स का, न कि हर एक चीज को सेपरेटली स्टडी करना है। सेपरेटली स्टडी करने का काम साइंटिस्ट्स का है। फोटोसिंथेसिस को अलग से समझो, लीफ को अलग से समझो, वायरस को अलग से समझो, दैट इज द जॉब ऑफ साइंटिस्ट्स। लेकिन जो फिलोसफर का जॉब है, दैट इज टू स्टडी दिस होल यूनिवर्स टुगेदर, एक साइनोप्टिक व्यू देना है। दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द नेचर ऑफ फिलॉसफी। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस फिलॉसफी में, फिलॉसफी और एजुकेशन में आते रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो बी इन टच and like this video. Thanks.